this one. ये पेपर निकाल लो ना. So in last class we discussed about nucleus, chromosomes, types of chromosomes we have seen, right? In present class we are discussing about micro bodies. क्या पढ़ेंगे? Micro bodies, last topic of cell, the unit of life. Micro bodies. Micro bodies are minute single membrane bound cell organelle. Minute single membrane bound cell organelle. It includes peroxisomes. It includes peroxisomes, glyoxysomes. Yes, peroxisome, glyoxysomes, they are also single membrane bound cell organelle. Peroxisome, all of you know, it contain which enzyme? Peroxisome contain catalase enzyme. Catalase enzyme which break down hydrogen peroxide. Which break down हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ब्रेक करने वाले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने वाले कैटालेज एंजाइम. Actually, hydrogen peroxide is injurious to the cell, living cell. It's inflammable. Hydrogen peroxide आप पढ़े होंगे. Inflammable होता है. It is injurious to the plant cell or animal cell. So peroxisome take care. They break down whenever hydrogen peroxide is produced. It break down that. It carries out degradation of hydrogen peroxide. Coming to glyoxysomes. Glyoxysomes convert non-carbohydrate like lipids, proteins into carbohydrate. Glyoxysomes are also single membrane bound microbodies, and this glyoxysome convert non-carbohydrate just like oils, proteins into carbohydrate, usually during seed germination. Because सीड के अंदर क्या है? ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है. What is the function of that oil? Conversion of oil into carbohydrate during seed germination. You can add during seed germination. So this is what microbodies. Year completes cell, the unit of life. Now we are starting the new chapter, cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. Question is, why cell dividing? Why cell is dividing? And how it divide? What is the mechanism? What are the stages? What are the types of cell division? That all we are going to discuss in this chapter. Life of all the living organism starts with a single cell, right?
Life of all starts with a single cell, with a single cell zygote. Whether it may be a very huge banyan tree or the largest animal on the earth, blue whale. Every organism life starts with a single cell that is called zygote. That zygote formed by the fusion of sperm and ova, दिस जाइगोट, ब्लू वेल की भी लाइफ जो है एक जाइगोट से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद उतना बड़ा एनिमल बन जाता है। बनियान ट्री भी पहले एक छोटा सा एक सिंगल सेल जाइगोट होगा विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। दिस जाइगोट डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल, then divide and form 4 cell, then divide and form 8 cell, then divide 16 cell, then divide 32 cell, then become millions of cells, है ना? So that means life of all living organisms starts with a single cell zygote that divide and form 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16 cell. It passes through on so many stages and becomes millions and billions of cells later on. ठीक है? So this is the purpose. That means growth of organism is due to cell division. I can say growth of organism is due to cell division. Growth of organism is due to cell division बोल सकते हैं हम, ठीक है? So why the topic is cell cycle and cell division? There are two separate words, right? Cell cycle अलग है, cell division अलग है. Now if I talk about cell cycle, what is cell cycle? All the sequential events, all the sequential events that occur during cell division, is called cell cycle. ठीक है, this is cell cycle. Sequential events mean there are progressive stages, step 1, step 2. That means there is a perfect sequence. Sequential means which is occurring step by step. During cell division, it is called cell cycle. And cell cycle divided into two phases. We can divide cell cycle into two phases. Number 1, interphase. Number 2, M phase. Cell cycle divided into two phases, interphase and M phase. What is mean by interphase? Interphase क्या है? Interphase is actually preparatory phase. Preparatory phase means where cell prepare itself to divide. All the preparations needed for cell division are taking place in interphase stage, and the actual cell division occur in M phase. ठीक है? So we can write here what is interphase. Interphase also called preparatory phase. Where cell is actually preparing itself to divide. जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, दैट इज इंटरफेस.
However, however, interface called resting stage is a misnomer. एक रॉन्ग नेम है. एक्चुअली सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, फिर भी जो है इसको हम रेस्टिंग स्टेज मानते हैं और ये एक रॉन्ग नेम है. ओल्ड बुक्स में लिखा गया रेस्टिंग स्टेज. पहले से लोग है ना रेस्टिंग स्टेज बोलते आए इसको, बट एक्चुअली सेल इज नॉट रेस्टिंग हियर. सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू डिवाइड. ह्यूमन सेल takes 24 hours to divide. 24 आवर्स लगते हैं एक ह्यूमन सेल डिवाइड होने के लिए. 24 आवर्स. इन दैट 23 आवर्स spends in interphase. 23 hours spent in interphase and remaining 1 hour actual M phase or cell division occurs. समझ रहे हैं आप? यम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज. यम फेज मींस माइटोटिक फेज वेयर सेल एक्चुअली डिवाइडिंग. इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इंटरफेज में प्रिपरेशन चल रहा है. इंटरफेज में क्या चल रहा है? प्रिपरेशन चल रहा है. ह्यूमन सेल टेक्स 24 आवर्स टू डिवाइड. इन दैट 23 आवर इंटरफेस एंड रिमेनिंग 1 आवर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, यम फेज हो रहा है. यम फेज मींस माइटोटिक फेज, एक्चुअल सेल डिवीजन. So we can say interface 95% ड्यूरेशन. आया समझने? ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेस जो है 95%. अब जैसा आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम कितने आवर का है? 3 आवर्स का ही एग्जाम है एक्चुअल एग्जाम. लेकिन आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं? so many months, so many days, so you are preparing. so एक्चुअल एग्जाम होगा सिर्फ 3 आवर, लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है. द सेम थिंग इंटरफेस. 95% ड्यूरेशन इज इन इंटरफेस. 95% ड्यूरेशन. जस्ट यम फेज है ना 1 आवर में कंप्लीट होने वाला है. Whether this 24 hour is same for all the cells? No. It is variable cell to cell. Human cell के लिए 24 hours बोला मैं. Yeast takes 90 minutes to divide. Yeast take 90 minutes to divide. Yeast में 90 minutes लग रहे हैं. Okay. Now let's go to see cell cycle. What are the stages of cell cycle? Cell cycle होता क्या है? Say, suppose this cell wants to divide. This is the cell. It want to divide. First it will go for interface for 23 hours and then M phase होगा actual. Right? Suppose there is a cell, if it wants to divide, first it has to spend 23 hours in interface and then 1 hour in M phase for human cell. Correct? Now let's see what are the stages. Stages क्या है? Interface is equal to G1 stage plus S stage plus G2 stage.
You can say G1, yes, G2. Interphase is divided into 3 phases. 23 hours का जो preparation है, that is also divided G1, yes, G2. And then M phase is divided. M phase is equal to karyokinasis plus cytokinasis. अभी मैं स्टेज के नाम बता रहा हूं. आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट हैपेंस इन G1, व्हाट हैपेंस इन यस. इवेंट्स तो पढ़ना है बाद में, पहले अभी आप नेम्स याद करो. इंटरफेज में 3 सब स्टेजेस, यम फेज में 2 स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. व्हाट इज मीन बाय कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस. व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Can we further divide karyokinesis? Karyokinesis further divided into PMAT. PMAT. What is PMAT? Prophase plus metaphase plus anaphase plus telophase. आपको मैं बताऊं, 80% ऑफ द चैप्टर क्या है? 80% है इवेंट्स. इवेंट याद रखना, जीवन में क्या होता है, या स्टेज में क्या होगा, G2 फेज में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हाउ इट हैपेंस. कैरियोकाइनेसिस में कितने स्टेजेस? पीमैट. पीमैट में प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में. इवेंट्स याद रखना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लेट्स बिगिन. पहले अभी आपको नेम्स बताया मैं आपको. जस्ट इंटरफेस डिवाइडेड इनटू G1, यस, G2, एंड M phase डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. हाँ, साइटोकाइनेसिस में फर्दर कोई स्टेजेस नहीं है. साइटोकाइनेसिस में कोई फर्दर स्टेज नहीं है, बट कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. नाउ लेट्स सी diagrammatically all these stages. अगर कोई सेल डिवाइड होना है तो फर्स्ट क्या करना चाहिए? G1 स्टेज करना चाहिए फर्स्ट. देन देयर शुड बी यस स्टेज, देन G2 फेज. G1 यस, G2. उसके बाद क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. लिखेंगे प्रोफेज, दिस इज द डायरेक्शन सी. ये डायरेक्शन में सेल डिवीजन होगा. G1 से स्टार्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, and what is this stage after telophase? Cytokinesis. Cytokinesis.
G1 is the first stage, and I can say this prophase to, from this prophase to cytokinesis, प्रोफेज से स्टार्ट करके साइटोकाइनासिस तक मैं क्या बोलूंगा, यम फेज, वी कैन कॉल इट एज यम फेज, यम फेज. That means if any cell which is dividing, if any cell is dividing, means compulsory that cell should be in any one of these stages. Compulsory those cells should be either in G1 or in S or in G2. They should be in some stage. ठीक है, जैसे ही आप बस में बैठ गए, जर्नी स्टार्ट हो गई. अब जर्नी स्टार्ट हो रही है मतलब कंपलसरी उसमें जर्नी में आपको बहुत सारे स्टेशंस मिलेंगे बीच बीच में, और जब जर्नी स्टॉप हो जाएगी, सारे पैसेंजर की जर्नी एक बार ही स्टॉप होती है क्या? नहीं. सम पैसेंजर फर्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे, सम पैसेंजर सेकंड स्टेशन पे उतरेंगे. ठीक है, अगर आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई है तो आप सेल साइकिल से एग्जिट कर सकते हैं, सेल साइकिल से एग्जिट कर सकते हैं, बस में से एग्जिट कर सकते हैं अगर आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है. और वो बस कहां पर रुकेगी? ऐसा नहीं है कि जर्नी कंप्लीट हो गई तो कहीं पे भी रुक गए, प्रोफेस में रुक गए, मेटाफेस में, ऐसा नहीं. देयर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, check points, where only in that phase only cell cycle stops. For example, G1 stage से some of the cell can exit from the G1 stage, enter into G0 stage. G0 state. G0 state means non-dividing cell. Now cell do not want to divide, cell want to exit from the cell cycle. सेल को एग्जिट करना है सेल साइकिल से, ओके एग्जिट कर लो, एग्जिट कर गए. सपोज आपने सोचा आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई और आप एग्जिट कर गए बस से. अगेन यू वांट टू कंटिन्यू दैट सेम जर्नी, व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू चूज अनदर बस. मतलब G0 स्टेट से फिर सेल साइकिल में वापस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. इफ सेल डू नॉट वांट टू डिवाइड, इट विल गो इन परमानेंट G0 state, and if want to divide again, it can re-enter the cell cycle through G1 phase. That means if a question, if there is a statement, if cell exit from the G1 phase, whether it is a permanent exit or temporary exit, it is a temporary exit, it can re-enter the cell cycle. It can re-enter. ठीक है. Now let's making the list of all the events. Number one, G1, what happened? Yes, what happens? And here compulsory remember G1. G1 को मैं क्या बोलूंगा पता है? G1 stage also called post mitotic phase, post mitotic phase or pre-synthetic phase. Pre-synthetic phase. Many students they get confused with this name. Post mitotic. That means after M phase, what is the phase? G1 phase, and G1 is also called post mitotic. Post means after M phase, post mitotic phase. Also called pre-synthetic phase, before S phase. Then what is S phase? S phase is synthetic phase
S phase is synthetic phase. Then what is G2 phase? G2 क्या होगा? Pre-mitotic phase. Pre-mitotic phase you can call it, or you can call it post synthetic phase. पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं आप, इसको पॉसिबल है. यू कैन कॉल इट पोस्ट सिंथेटिक आल्सो. जरा डोर. ओके. जीवन, पहले ये वर्ड्स में कंफ्यूज मत कर लो आप. प्री माइटोटिक, पोस्ट सिंथेटिक. प्री माइटोटिक अच्छा खासा कंफ्यूजन होता. प्री माइटोटिक मतलब G2 कब हो रहा है बोलो? यम फेज से पहले हो रहा है ना ये. G2 is occurring before yam phase, that's why G2 is called pre-mitotic phase, also called post-synthetic phase because it occurs after S phase. Now let's list out all the events one by one. In G1 what happens, yes what happens. अगर वो इवेंट्स याद हो गए तो हो गया सेल साइकिल. सेल साइकिल पढ़ने का बेस्ट मेथड है इवेंट्स को पूरे समराइज करो. इवेंट्स कर लेने के बाद जो है आप कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लो, बस सेल साइकिल कंप्लीट. कोई यहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. चलो स्टार्ट करेंगे G1 फेज से. G1 फेज व्हाट हैपेंस? G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली एक्टिव है. सेल का ग्रोथ हो रहा है. सेल ग्रोथ ऑकर्स. सेल ग्रोथ ऑकर. व्हाट इज मीन बाय सेल ग्रोथ? एक्सपेंशन ऑफ द सेल, इंक्रीज इन सेल साइज. Why cell divide? If there is a question, why cell divide? If you want to give scientific reason for that, cell divide to maintain nucleocytoplasmic ratio. अगर एक सेल है, पहले इतना सेल है, you can see the nucleus size, you can see the cytoplasm size. Suppose cell is growing, cytoplasm is increasing, but nucleus is same. क्या हो रहा है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रही है. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रही है. एक्चुअली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का साइज मेंटेन रहना चाहिए. इफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्सपैंडिंग, द सेल मस्ट डिवाइड. सेल मस्ट डिवाइड. ठीक है. इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म में लिखना हम सेल डिवाइड्स टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. सपोज देयर इज ए होम, एक घर है और इस घर में सपोज एक ही किचन है एंड फैमिली इज ग्रोइंग. फैमिली इज ग्रोइंग, फैमिली का साइज बड़ा हो रहा है. तो अब क्या करना चाहिए? ये घर को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा. ये घर में 2 किचन बनाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये रूल है. अगर डिवाइड करेंगे, सपोज डिवाइड करके एक ही किचन रख के डिवाइड करें तो कैसा रहेगा? डिवाइड कर दिए, चलेगा? तो मतलब क्या है? इफ सेल इज डिवाइडिंग मींस एवरीथिंग शुड डबल. DNA must double, mitochondria must double,
chloroplast must double, endoplasmic reticulum double, cytoplasm double, nucleus also double, so that it will be distributed equally to the daughter cells. This is going to happen. G1 phase means cell is growing. Cell is growing, cell is expanding, preparing itself to divide. डिवाइड होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? ग्रोथ. ग्रोथ ही नहीं हुआ तो डिवाइड क्यों करेंगे? इफ सेल इज नॉट ग्रोइंग देन देयर इज नो डिवीजन. ठीक है, ये हो गया G1 फेस. ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? यस फेज. यू नो यस फेज सिंथेटिक फेज बोलते हैं. व्हाट हैपन इन यस फेज दैट वी हैव टू सी. डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑकर, और डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं. देखो ऑकर्स. डीएनए रेप्लिकेशन आकर, डीएनए का जो सपोज एक सेल में अगर एक ही कॉपी है डीएनए की, इफ दिस सेल वांट्स टू डिवाइड देन द डीएनए नंबर मस्ट गो डबल. करेक्ट. फिर ये सेल जाके आगे डिवाइड कर सकता है इनटू टू डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल हैविंग वन कॉपी ऑफ डीएनए. दिस इज द रिक्वायरमेंट, है ना. डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट एंड शुड ऑकर और डुप्लीकेशन मस्ट एंड शुड ऑकर. एंड 2C DNA become 4C. What is C? Copies. C stands for copies. 2 copies of DNA become 4 copies of DNA. 4 copies of DNA become 8 copies of DNA. समझ नहीं आ रहा आपको? एग्जाम में कुछ भी पूछेगा. If G1 phase is having 8C DNA, then G2 phase is having how many DNA? G1 में अगर 8C है, यस फेज में पता नहीं, G2 फेज में कितना रहेगा? तो यस फेज में 16C DNA, G2 फेज में भी 16C DNA. डबल हो गया ना. यस फेज में डीएनए डबल हो जाता है. 2C DNA become 4C. And in S phase, centriole also duplicate. Centriole also duplicates. Centriole, you all know, it is a cell organelle which is needed for cell division. It is found in animal cell. It is absent in plant cell. पता है ना? A pair of centriole is present very close to the nucleus. Right angles to each other. राइट एंगल्स टू ईच अदर. पता है हम. सेंट्रियोल का डबल होगा यस फेज में. डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, सेंट्रियोल डबल इन विच फेज? ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है. हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. देखिए यहां पर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. दैट मीन्स इन यस फेज व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर? DNA replicate, histone replicate, ठीक है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स. रेप्लिकेट डुप्लीकेट का मतलब सेम ही होता समझो. ओके. एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. इसके ऊपर एक क्वेश्चन. इफ G1 phase, एक क्वेश्चन, if G1 phase is having 46 chromosome, 46 chromosomes, what will be the chromosome number? What will be the chromosome number? Chromosome number in S stage, G2 phase. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे?
आफ्टर एम फेज। क्या बोलेंगे बोलो? अगर जीवन में 46 क्रोमोसोम है तो यस में भी 46 ही रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग। G2 में भी 46 ही रहेंगे। आफ्टर यम फेज भी क्या रहेंगे? 46 ही रहेंगे। अब आया समझने? आप बोलेंगे हाउ दिस इज पॉसिबल? वन मोर टाइम सेम क्वेश्चन को और एक बार देखेंगे, अलग एंगल से डायग्रामेटिकली देखेंगे। अगर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, यस फेज में भी 46 ही रहेंगे बोल रहा हूं मैं, G2 फेज में भी 46 ही रहेंगे बोल रहा हूं, फिर यम फेज में दो सेल बन गए, उसमें भी 46 रहेंगे, इसमें भी 46 रहेंगे। अब नहीं समझने आ रहा। यहां तक ठीक था। G1 यस, J2 आफ्टर यम फेज. So you may ask question here, how this 46 become double here? Suppose अगर आपके फादर पॉकेट मनी दिए, आपको 100 रुपीज देके बोले कि आप 50 लेना है, आपके यंगर ब्रदर 50 लेना है, आप 50 लेना है, आपके यंगर ब्रदर 50 लेना है, तो आपके पास कितने हैं? अब 100। यस फेस के बाद 100, G2 फेस के बाद भी 100, लेकिन आपके यंगर ब्रदर को देना है। कैसा डिवाइड करेंगे? वो इस नोट को ऐसे फाड़ के आधी आधी ले लेंगे, है ना? लेकिन वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पर, वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पर। हम रियल लाइफ में तो नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन यहां पे हो रहा है वैसा। पहले जीवन स्टेज में क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड रहता, यस फेज में क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड हो जाता। अब आप पूछो वो क्यों? जीवन फेज सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, यस फेज डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, ठीक है? बिकॉज डीएनए रेप्लिकेट्स एंड डीएनए नंबर इज इक्वल टू क्रोमैटिड नंबर, डीएनए नंबर इज इक्वल टू क्रोमैटिड नंबर। समझ गए? मतलब अब क्या हुआ, फादर जो है पॉकेट मनी दिया 100 रुपीज, फिर आप याद दिलाए सर, आप याद दिलाए कि मैं अकेला नहीं हूं और एक है, तो और एक 100, तो आप कितने कितने हो गए आपके पास? 200। लेकिन है कितने पर्सन अभी एट प्रेजेंट? एक ही पर्सन है, उसके पास 200 है। आगे जाके डिवाइड होना है, वो मनी डिवाइड होना है। नहीं समझे? एल्डर ब्रदर पहले 100 रुपीज ले लिए, उसके बाद बोले और एक छोटा है, और एक 100 ले लिए, तो 200 हो गए। लेकिन है किसके पास? वो एल्डर ब्रदर के पास ही है ना, अभी डिवाइड नहीं हुए ना। तो G2 फेज में भी ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड। लेकिन आगे आफ्टर यम फेज क्या होता? दो सेल बनते हैं, दोनों सेल में एक एक दे देंगे। समझे बात? क्लियर? अब इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता। लगा दो यहां पे टाइम, आप समझ लो। अगर ये समझने आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने आ गया है। G1 chromosomes are single stranded, S phase chromosomes are double stranded. You should give reason why chromosome become double stranded in S phase. Because DNA replicates, DNA का replication हुआ है, because of that chromosome number double. S phase में chromosome number double हो गया, G2 phase में भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही है। और एक बात सुनो, क्रोमैटिड नंबर डबल हुआ है। तो बात क्या समझने आई? इन यस फेस क्रोमोसोम नंबर
रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यहां पे कितने क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। यहां पर कितने क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। इन यस फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, बट क्रोमैटिड नंबर, किसका नंबर? क्रोमैटिड का नंबर क्या हुआ था बोलो? क्रोमैटिड नंबर डबल्स, क्रोमैटिड नंबर डबल्स। इन यस फेज chromosome number remains same, no change in chromosome number. First G1 phase is also having 1 chromosome, yes phase is also having 1 chromosome. Anybody says here 2 chromosome? yes phase में कितने क्रोमोसोम है? 1 ही है, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया इसके पास। वो एल्डर ब्रदर के पास 100 रुपीज आ गए थे ऑलरेडी, और एक 100 भी आ गए, 200। अगर सपोज एल्डर ब्रदर दोनों भी रख लिया तो, आगे नहीं दिया तो, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। इफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर, if DNA replication occur without separation, if DNA replication continuously occur but DNA is not separating, remain in the same chromosome, that condition leads to endomitosis बोलते हैं इसको, एंडोमाइटोसिस। जैसे एल्डर ब्रदर पॉकेट मनी लेके रख लिए, छोटे भाई की भी लेके रख लिए, दिए नहीं, क्या बोलेंगे इसको? एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस बोलेंगे। तो G1 phase chromosomes are single stranded. In S phase chromosome become double stranded, chromatid number double, chromatid number double, but chromosome number same. In S phase chromosome number remains same but chromatid number double. This is called, अब बोलो सबसे कंफ्यूजिंग लाइन क्या है चैप्टर में, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। This is called chromosome duplication. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये याद रख लो। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन मींस क्रोमैटिड नंबर डबल्स, क्रोमैटिड नंबर डबल्स। और अगर हम इसको 10 मिनट्स में डिस्कस करें, नहीं समझने आया तो भी करना डिस्कशन कंटिन्यू, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर में। अगर एक सेल में G1 फेज में, G1 phase is having 1 chromatid, G1 phase is having 1 chromatid, but in S phase what happened? The chromatid number doubles, chromatid number doubles। G2 phase में भी वही रहेगा, कंटिन्यू होगा G2 phase में। आफ्टर यम फेज है ना, G1 या G2 के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? आफ्टर यम फेज, पी मैट को मिला के बोल रहा हूं। आफ्टर यम फेज क्या होगा? ये आफ्टर यम फेज, सो ईच क्रोमैटिड सेंड टू 1 डॉटर सेल। यहां पे 2 क्रोमैटिड है ना, तो एक एक क्रोमैटिड एक एक डॉटर सेल को भेज दो। यहां पर कितने क्रोमोसोम है? 1। यहां पर कितने क्रोमोसोम है? 1। ईच सेल इज हैविंग 1। यस फेज में कितने क्रोमोसोम है? 1। G2 में कितने क्रोमोसोम है? 1। मैजिक कैसे हो गया ये 1 1 1, ईच सेल इज हैविंग 1। तो ये मैजिक हुआ डीएनए रेप्लिकेशन से। क्रोमैटिड का नंबर डबल हुआ है, इधर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। क्या डबल हुआ? क्रोमैटिड का नंबर डबल हुआ। ठीक है। अब थोड़े एल्डर ब्रदर इतने इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको पॉकेट मनी मिली 100, फिर और एक 100 ले लिए छोटे भाई के लिए। अब बड़े भाई को पता है कि आगे जाके इसको डिवाइड करना है 100 100, लेकिन
बड़ा भाई क्या करा, बहुत इंटेलिजेंट, पहले वो नोट का एक जेरोक्स ले लिया, जेरोक्स ले लिया, अपने पास 200 रख लिया, और एक वो जेरोक्स कॉपी लेके जाके छोटे भाई को दे दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन विदाउट सेपरेशन, समझ गए? डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेपरेशन, इट इज कॉल्ड एंडोमाइटोसिस बोलते हैं उसको, एंडोमाइटोसिस। क्या लिखे? डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेपरेशन, विदाउट सेपरेशन, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एंडोमाइटोसिस बोलेंगे। एंडोमाइटोसिस, ओके, आगे देखेंगे हम एंडोमाइटोसिस के एग्जांपल वगैरह। एंड वन मोर थिंग, जीवन फेज, जीवन फेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज्ड, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस। ये बोले मुझे, व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज? What is DNA polymerase? It is the enzyme required for DNA replication. याद है आपको? डीएनए डबल करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? डीएनए पॉलीमरेज पढ़े हैं हम। डीएनए डबल्स बिकॉज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जीवन फेज में क्या हुआ बोलो? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस हुआ है। यस फेज में क्या हुआ? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव है। अच्छा, मतलब कितना कंफ्यूजिंग है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कब सिंथेसिस हुआ और कब काम करेगा? इट इज सिंथेसाइज इन G1 phase but work in S phase. It operates, it is functional in S phase. So now we have listed all the events of G1 phase, all the events of S phase. अब G2 लिखना है मुझे। G2 phase, G2 phase means RNA synthesis and protein synthesis, protein synthesis, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। अभी जब सेल साइकिल चल रहा है ना, G1 years, G2, all organelles are obeying the orders of nucleus, all the organelles are obeying the orders of nucleus। सब सुन रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल रहा है डबल हो जाओ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डबल हो जाओ। सब ऑर्गेनल है ना न्यूक्लियस की सुन रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं nucleus is giving order and all other organelles are obeying those orders except two organelles। दो ऑर्गेनल न्यूक्लियस की बिल्कुल नहीं सुनते, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड इंडिपेंडेंटली, देयर डिवीजन इज नॉट सिंक्रोनाइज विद सेल साइकिल। मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं ये लाइन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड इंडिपेंडेंटली, नहीं सुनते वो सेल की, जब उसके मर्जी में तब डिवाइड कर लेते हैं। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम्स, they are all obeying the orders of nucleus। cell is dividing means everything should double होना चाहिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद कभी भी डिवाइड हो सकते हैं by fission like process, पढ़ चुके हैं हम। So that means we have listed all the events of G1 phase, S phase, G2 phase। अब एनसीईआरटी ओपन करे तो कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे सेल साइकिल में, फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे भी है क्वेश्चन। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ,
Plant grows continuously throughout life because of मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम बोल के एक स्पेशल टिश्यू है. That's why plants are growing, their heights are increasing throughout life. और क्या है सेकंड क्वेश्चन? नहीं नहीं वहीं से. Do animals also have such meristem? Animals are not having meristem. Animals are not having meristem. अगर एनिमल में भी मेरिस्टेम होते तो कंटिन्यूअसली हाइट इंक्रीज होती, 50-60 ईयर्स में भी हाइट इंक्रीज होती कंटिन्यूअसली हाइट. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एनिमल्स में हाइट इंक्रीज हुई ओनली अप टू ए सर्टेन एज. आफ्टर दैट हाइट स्टॉप्स. एनिमल्स आर नॉट हैविंग मेरिस्टेम. और क्या है? कैन यू टेल द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स इन प्लांट? हाँ, मेरिस्टेम्स in plants located at root tip, shoot tip and lateral positions. यहां पर होते हैं मेरिस्टेम्स. मतलब अगर कोई प्लांट है, समझ लो ये लीफ है, समझ लो, तो यहां पर आपको मिलेगा मेरिस्टेम. शूट टिप पे मेरिस्टेम मिलेगा. रूट के टिप्स के ऊपर भी मेरिस्टेम मिलेगा आपको. लैटरल पोजीशन में भी मेरिस्टेम मिलेगा. साइड्स में. व्हाट आर द पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम? बोलिए जल्दी से. शूट टिप, रूट टिप, लैटरल पोजीशन. लैटरल पोजीशन में भी है मेरिस्टेम. हो गया वो बॉक्स. और कोई क्वेश्चन बचा उसमें? Do animals have meristem? No, animals are not having meristematic tissue. What is meristematic tissue? Continuously dividing tissue is called meristematic tissue. Plants have meristematic tissue. Animals are not having meristematic tissue. Animals में नहीं है meristematic tissue. Okay, clear. Next page. What is the question? Onion root tips में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पहले ये बताइए. Onion root tips 16 क्रोमोसोम. अगर किसी के बुक में 14 क्रोमोसोम लिखा हुआ है, मेक करेक्शन. 16 क्रोमोसोम आना चाहिए. ऑनियन रूट टिप्स आर हैविंग 16 क्रोमोसोम. अब वही पूछ रहा है, जीवन में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, यस में कितने रहेंगे, G2 में कितने रहेंगे, आफ्टर यम फेज कितने रहेंगे? 16 16 16 16. क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंजिंग. क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंजिंग इन सेल डिवीजन. अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं. क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंजिंग. व्हाट इज चेंजिंग? क्रोमैटिड नंबर चेंजेस. क्रोमैटिड नंबर चेंजेस. ठीक है. सो इतना रिवाइज करके आइए. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोफेज से पढ़ना है. क्या? G1 या G2 होने के बाद क्या रहेगा? प्रोफेज. थैंक यू.